एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज की वीडियो में लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है रोहित ने, प्रतीक ने, पार्थ ने, आशीष ने और वीडियो का टाइटल है इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट टाटा कर्व डिफरेंट बाय डिजाइन। काफी टाइम के बाद हम लोग कोई ऐसे गाड़ी वाली वीडियो देखना जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि टाटा कर्व में क्या नया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 8 7 6 हैप्पी न्यू ईयर 5 4 3 2 1 बैकग्राउंड म्यूजिक 0। ओके सॉरी, 0 भी आता है, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा कि Hello शायद to all हम my media friends. It's also my pleasure to welcome our customers tuning in from across the world. The last time I was before you, it was for the launch of India's first subcompact SUV, the Tata Punch. Since its launch, the Tata Punch won a lot of love from our customers and has catapulted us to become the #1 SUV brand. It's a matter of great pride to be the leader of this fast-growing and aspirational category, especially since the SUV lifestyle in India was pioneered by Tata Motors with iconic products like the Sierra and Safari. Becoming the leader in the SUV space is an outcome of approaching each sub-segment uniquely and adding differentiated value to each of our product offerings. Our SUVs offer strong value propositions to customers across the segments. At their core, they are built with a combination of inside-out safety, sporty design, and delightful driving experience. All these factors continue to delight customers and have given us podium finishes in each of the segments we operate in. Tata Punch, the category creator, a unique offering with a subcompact footprint delivering unmatched SUV capabilities and passenger comfort. Tata Nexon, the first product to break the design and safety conventions in the compact SUV segment. In a short period, Nexon has established itself as India's #1 selling SUV. Tata Harrier and Safari. These amazing SUVs were built on advanced architecture and pedigree of Jaguar Land Rover. They continue to power their way into our customers' hearts and also to the top of the high SUV segment. Today, we see the opportunity for another SUV in our family. An SUV तो बहुत अच्छा। with futuristic design मुझे थोड़ा सा उस तरह का and म्यूजिक लग रहा है। exhilarating किस तरह का? performance. वो जो यार वो मूवी An नहीं SUV Beast? big enough to carry families for long journeys, yet compact enough to maneuver in congested city roads. An SUV that is designed to stand out like nothing else on Indian roads. Yet, at the same time, it is extremely practical and user-friendly. An SUV that will be launched as EV first and with ICE engines subsequently. इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक It's a में pleasure दोनों to introduce concept curve, different by design. ओह ये यहाँ पर लाइट्स होंगी इसकी। है। हाँ ठीक है यार। हाँ बोनट कितना अच्छा है ना। वाओ Oh my God। इंटीरियर देख के बंदा खुश हो जाता है। कसम से
इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना। Different by design. What we wanted to do was create a product that is really unique, dynamic, sporty, and of course elegant. This is an SUV with a sporty stance. हाँ SUV है। लग नहीं रही वैसे। हाँ लग नहीं रही। डिजाइन है। So we created a new typology vehicle. We've kept the overall standard wide wheel arches, large cladding, and the command driving position. And we combined it with a sleek and efficient and very emotional silhouette, augmented by this very sleek arch, which creates an SUV sporty character. Of course, we've married that with an overall design language, which we call digital. So we have very clean surfaces and all crisp lines. Everything is about being efficient. And all of the surfaces with a hard line architecture create something that is very comprehensively exciting and dynamic, but at the same time functional. A squared up back end, aerodynamic wheel design, and again, something that creates overall a communication that this is a crisp, dynamic, and sporty product. We haven't sacrificed any of the function in terms of rear roominess, ingress, egress, or boot space with this design. In fact, we've actually offered class-leading dimensions and features. When we were designing this vehicle, we also wanted to make sure that it didn't come across as claustrophobic. So the entire cabin is augmented by the panorama sunroof, which creates a real feeling of light. And of course, just like with the exterior, a real attention to detail was focused. You can see the detailing, the fluting, the switches, the vents, and the sharpness of the design are all consistent with the exterior. So just like with the exterior, what we wanted to do was communicate the same design values on the interior. The horizontal light guide, which mirrors the front and the rear of the vehicle. The emphasis of detailing and efficiency, which you see in all the detailing throughout the interior. We talked about creating a technology-focused product. That's emphasized by the two screens on the top of the instrument panel, which communicate the infotainment and, of course, the information that the driver needs. That's also augmented by the heater controls, which are now a touchscreen interface. The steering wheel is our next generation steering wheel DNA. What we've done is we've created a digital platform where the logo is now illuminated in the center, and that's augmented by two switches on either end where the driver can communicate and interface with the product as well as possible. There's another aspect, which is the color and materials and the finish that was chosen for this vehicle. You can see it communicates a real sporty feel, this ombre effect fabric which we have on the instrument panel and on the seats. Overall, create a real lifestyle product, again emphasizing the sporty character of the users and the customers. And that is the Curve. टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो इससे पहले भी हमने जो है टाटा की काफ़ी गाड़ियां देखी हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये लगती है कि एक तो टाटा की जो गाड़ियां जितनी भी आती हैं उनकी प्राइस बहुत नॉर्मल रेंज में होती हैं और उसके अलावा डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उन्हें कंपेयर करें ना इंटरनेशनल मार्केट में जो गाड़ी हैं तो एक तरह से उन्हें टक्कर भी देती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम लोग जितनी भी टाटा की गाड़ियां देखते हैं हमें तो बहुत ही लग्जरी वाली गाड़ियां लगती हैं। और स्पेशली अगर मैं टाटा कर्व की बात करूं आज ही की जिस तरीके के साथ एक स्पोर्टी टच दिया गया है उसमें, और अगर उसके डिटेलिंग की बात करें जो उसका इंटीरियर है तो आई थिंक काफी स्लीक आपको लुक नजर आती है। और उसके साथ साथ जो बाकी फीचर्स उसमें इंस्टॉल किए गए हैं मुझे वो बहुत खूबसूरत लगे हैं। स्पेशली उसका मुझे स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगा है, फिर उसकी जो स्क्रीन्स हैं जो अंदर से टच सिस्टम है वो काफी अच्छा है।
और उसके साथ साथ मैं बोलूंगी जो पैनोरामिक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक स्पोर्टी लुक के साथ गाड़ी दी गई है, तो जो आपको थोड़ा समटाइम्स होता है कि मे बी कंजेस्टेड लगे अंदर से, तो जिन लोगों को थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक का इशू रहता है तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा है कि आपको हवा ताजा मिलना शुरू हो जाती है। वैसे अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो जहां तक मैं पढ़ रहा था ये मिनी एसयूवी में जो है कंसीडर की जाएगी, क्योंकि एक प्रीमियम एसयूवी होती है, उससे जरा बीच में छोटी एसयूवी होती है, तो ये वो बनाएगी। लेकिन मैं अगर इसके कलर की बात करूं ना तो कलर बहुत अच्छा है। अगर मैं एज ए कस्टमर बात करूं तो कस्टमर जो है ना वो देखता है कि भाई गाड़ी अंदर से कैसी है, गाड़ी की जो बाहर की लुक है वो कैसी है, ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट होती हैं। लेकिन अगर बाकी बात की जाए, जैसे बीच में कहा गया फ्यूचरिस्टिक जो है एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो एक उसके डिजाइन में नजर आता है। फिर उसके अंदर जो इंटीरियर बना हुआ है, जो सीटिंग बनी हुई है, आप जब उसे भी देखते हैं तो आपको जो है वो नजर आता है। फिर सबसे अच्छी चीज जो इसमें नजर आती है कि ये ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। और मैं जब पढ़ रहा था कि ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर, 500 किलोमीटर जो है वो कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको देगी, तो वाकई एक ह्यूज नंबर है कि 500, चले 500 ना भी दें, क्योंकि लाजिम बात है चार्ज भी तो करना है ना, आपको 400 450 किलोमीटर भी देना एक चार्ज में, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा खासा जो है नंबर है। लेकिन हाँ अभी जो है नो डाउट, मैंने पहले भी इस पे बात की थी जब नई नई एसयूवीज आई थी, उस पे किलोमीटर्स का था कि कम थे, लेकिन मैंने तब कहा था कि अगर इस पे ज्यादा काम होगा तो नो डाउट इसके हल भी निकलेंगे। तो अभी जो मुझे जो अभी भी एक ड्रॉबैक नजर आता है ना कि गाड़ियों को खड़ा करके चार्ज करना और वहां पे खुद भी खड़े होकर इंतजार करना, तो ये जरा लोगों के लिए एक ड्रॉबैक होगा। लेकिन जिस दिन ये कॉन्सेप्ट निकल आया कि गाड़ियां चलती चलती खुद ब खुद चार्ज भी होती रहेंगी सोलर से या किसी और तरीके कार से, उस दिन एसयूवी सही तरह कामयाब हो जाएगी। लेकिन काफी देर पहले मैंने इंडिया में एक आई थिंक मुंबई लोकल थी या पता नहीं किसी शहर की लोकल थी, उसको मैंने देखा था, उस पे सोलर पैनल जो है लगाए गए थे ताकि जो है वो सोलर पे चले। नहीं ये वो तो हम लोगों ने बाइक का देखा था। नहीं बाइक का नहीं, ये मैं काफी देर पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने वैसे ही एक क्लिप देखा था कि वो जो है सोलर पे ट्रेन जो है, अगर मैं अगर मैं सही हूँ तो मैं जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने काफी देर पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इंडिया की इस तरह की एक वीडियो देखी। बट आई थिंक जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हो तो जो एक टीम होती है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जिन लोगों का उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो प्रेजेंट करते हैं, वो सारे प्रॉज एंड कॉन्स चीजों को देखते हैं और फिर उसके बाद वो मार्केट में आती हैं और विद टाइम नो डाउट उसमें बहुत सारी आपको सुधार देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर टाटा की बात करूँ तो मुझे टाटा की एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि टाटा ने हर कैटेगरी की अपना एक आपको गाड़ियां हैं वो आपको देता है, और इसके अलावा आपकी जो रेंज है, प्राइस रेंज, वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हाँ आपको देख कर एक तो खुशी होती है। इवन कि हम लोग ये जो टाटा कर्व की प्राइस देख रहे थे तो उसकी प्राइस कितनी थी? वो अभी एक्सपेक्ट की जा रही है कि 20 लाख के पास होगी। वैसे मैं जब ये मैंने प्राइस देखी थी ना, मैं ये अभी वीडियो देख के सोच रहा था, मैं कहा अगर 20 लाख इंडिया में है, अगर पाकिस्तान में इन फ्यूचर कभी आपको ऐसी गाड़ी देखने में वो तो फिर करोड़ों में जाएगी। क्योंकि अगर अभी बात करें जो ट्रेडिशनल गाड़ियां हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक आम बंदे की फोर्स से वो जो बाहर हो चुकी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे रहते, आई मीन ट्रेड वगैरह होती रहती और टाटा की गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही होती, तो मतलब हम लोगों को बाकी गाड़ियों से तो सस्ती पड़ती ना। हाँ सस्ती पड़ती, लेकिन उसके अलावा फिर और भी बहुत सारी चीजें थी कि यहाँ पर आपको जो है वो सर्विसेज, यानी गाड़ियों की जो एक होती है पूरी एक ट्रेनिंग, पूरा एक शोरूम, यानी कि काफी सारी चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। मतलब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। हाँ, अगर टाटा चाहे तो अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस चाहें तो भी, कि मतलब रिलेशन अगर अच्छे रखें तो भी ये चीजें हो सकती बिल्कुल हो सकती है। नेबर कंट्री है तो मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे मोहल्ले से चीजें उठानी, उससे बेहतर ये है कि जो आपके लिए आसानी, आपके लोगों के लिए आसानी, उसमें आपको मुझे लगता है इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे मैं अगर टाटा की गाड़ियों की बात करूं, वैसे मैं टाटा की नहीं, मैं इंडिया में बनने वाली जितनी भी गाड़ियां अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरा ख्याल है कि आपको मिड रेंज से लेकर जो है ना आपको हाई रेंज तक, यानी कि अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको हर तरह की वहां पे गाड़ी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है कि हर तरह के कस्टमर को आपने जो है ग्रैब किया हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम यहाँ पर
बात करते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ आपको गाड़ियां वही नजर आती हैं जो सिर्फ अमीर लोग जो है ना एक स्पेसिफिक क्लास जो है वो अफोर्ड कर सकती है। बाकी जो है नो डाउट जो करप्शन कर सकते हैं वो भी उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल एक स्पेसिफिक क्लास में आ गए ना, लेकिन क्लास है ना, एलीट क्लास। लेकिन अगर हाँ मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूँ तो नो डाउट जो कंपनियां इतना इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इसके लिए इन्वेस्ट करेंगी ताकि जहां यानी कि रूट्स पर आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स यानी कि फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स जो है आपको मिले जहां पर आपकी गाड़ी जल्दी चार्ज हो सके और आप जा सकें। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी जैसे टाटा की तरफ से मतलब काफी सारी ई व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मौसम कह रहे हैं कि चार्जिंग पॉइंट जो है उसका खास ख्याल रखा है, तो वो ऑलरेडी उनके प्लान्स में ये चीजें शामिल होती होंगी, क्योंकि कस्टमर को कितना आप कंफर्ट दे सकते हो, आई थिंक सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी यही रहती है। और इसी बेस पर कस्टमर जो है वो मुझे लगता है कि जल्दी अट्रैक्ट भी होता है उस प्रोडक्ट वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ये फायदा होगा कि आप सोचें आप 25 से 30 लीटर फ्यूल में अगर 500 किलोमीटर कर रहे हैं तो वही अगर आपको 500 या 600 रुपए में चार्जिंग मिल जाए और आप जो है 500 किलोमीटर कर जाए, कितना फायदा रहेगा। ना एक और बहुत अच्छा जो मुझे सबसे पॉजिटिव साइड लगती है ना वो ये कि आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम लोग ऐसे पेट्रोल या डीजल पे जो गाड़ियां चलती हैं, एक तो उससे बहुत पोल्यूशन होती है और अक्सर बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी भी के हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो आपका दिल खराब होना शुरू हो जाता है, आप स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो उस चीज का मुझे लगता है कि लोगों की ना जान छूट जाएगी और एक हमें साफ इन्वायरमेंट। नहीं वैसे वो जो दिल खराब होता है ना वो नो डाउट डीजल की वजह से होता है गाड़ियों में, लेकिन मोस्टली जैसे बसेस में जाते हैं उसमें डीजल तो नहीं चढ़ता, लेकिन जो ब्रेक्स लगती है ना बार बार जो बड़े गंदे तरीके से ड्राइवर ब्रेक्स मारते हैं, दिल उससे खराब होता है। जब ट्रैफिक जाम होती है ना और सारी मतलब ऐसे आपको गाड़ियां खड़ी होती हैं और वो ऑफ नहीं करते, तो आपको वो सारी मुझे तो भाई वो जो चढ़ती है दिमाग को बू बहुत चढ़ती है, जो भी पोल्यूशन इतना ज्यादा आपको उस टाइम पर फेस करना पड़ता है। बट एनीवे ओवरऑल काफी खूबसूरत वीडियो थी, खूबसूरत गाड़ी थी, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है और आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। बट जाने से पहले सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहूंगी, बहुत मेरे दिमाग में ये बात आई है कि जो गाड़ियों के कलर्स होते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि ये फीमेल जो कस्टमर है उसको टारगेट करने के लिए कलर है और ये मेल को इस तरह से कुछ होता होगा? मे भी शायद होता हो, जैसे स्कूटीज की बात करें तो उसमें भी शेप भी और थोड़ा कलर भी जो है इस तरह का रखा जाता है कि वो मे भी होता हो। लेकिन मैं ना एक गाड़ी देख रहा था थोड़े दिन पहले, वो आप उसका कलर चेंज कर सकते थे यार। कैसे? पता नहीं रिमोट से वो कह रहे थे कलर चेंज, गाड़ी का कलर चेंज भी हो रहा था। अब पता नहीं वो फोटोशॉप सॉरी एडिटिंग की हुई थी, आफ्टर इफेक्ट्स इस्तेमाल किया था, क्या किया था, लेकिन मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था। अगर वाकई में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, मेरा तो ख्याल है एडिटिंग होगी। वैसे अगर एडिटिंग में भी है ना तो आने वाले टाइम में हमें ये चीज भी देखने को मिल सकती है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये गाड़ी और आपके पास टाटा की कौन सी गाड़ी है ये भी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें जल्द हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।